My name is Dr. Sumedh, right? And I'm a medical doctor, postgraduate medical doctor, working with all the leading institutes of Mumbai and also some institutes which are all over India. I've taught with 3 colleges. One is Mitibai College, NL College, and Raval College. And I also have a small clinic, right? So, being from the medical background, and don't worry, I expertise in the NEET part, right? 11, 12 boards, obviously, and NEET, and taking lectures for all boards, CBSE, ICC, IG, ISC, everything, right? Right up to the medical students. Under me, so many thousands of students have become doctors, specialists, surgeons. So many are doing good right now in all top colleges, AIMS, right? Abroad में मेरे कितने students हैं, UK, then Philippines, Russia, Malaysia, Antigua, Mauritius, Canada, सब जगह, all over Mumbai, it's top colleges. Everywhere our students are doing medicine. And they have scored great results in NEET. Awesome results. So today, NEET का result लगा है बच्चों. I will tell you my results. I'm still getting so many results from my ex-students. We will share them to you very soon. Now, today what I thought is, अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन आपको सिखा रहा है. Yes, yes. Good evening, good evening. And I'm sure बहुत लोग को डॉक्टर बनना है. Many of you all want to become a doctor, want to be a. So don't worry. If you are under my coaching, I assure you that you will be getting, good marks in NEET, and your dream to become a doctor should be fulfilled. So this is me, Dr. Sumedh. Yes, good evening, very good evening. So let's start today. Today what we will do is, आपका मैंने देखा tissues chapter चालू है. So what we will do is today I'll take some interesting chapter for you all. And see, I'm the HOD, head of Department of Biology at so many multiple institutes. So what we will be doing is, हम लोग आज एक ऐसा चैप्टर चालू करेंगे जो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. और जानबूझ के मैं ऐसा चॅप्टर ले रहा हूँ क्योंकि इट हॅज बीन, ते तुम्हाला 10वी मध्ये झालेला आहे. 10वी मध्ये झालेला चॅप्टर घेऊया म्हणजे तुम्हाला लवकर लिंक बसेल त्याचा. तो चॅप्टरचं नाव आहे, राइट, किंगडम एनिमेलिया. So we are going to start with the chapter called as the kingdom Now, why are we selecting this chapter? हम लोग Kingdom Animalia क्यों select कर रहे हैं? In 10th standard, you had a chapter number 6, Science 2 का क्या था? Classification of animals, right? Same होता है याच्यामध्ये सगळं, पण अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में होगा, बहुत हाई लेवल पे, नीट के लेवल पे करना है. 10th में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 10th इज लाइक अ ट्रेलर एंड 11th 12th इज लाइक अ फुल मूवी, राइट? सो आपने ट्रेलर देख लिया है तो पिक्चर में आपको मजा आएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रेलर से आपको आइडिया है पिक्चर में क्या होने वाला है. सो सी द एंटायर चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नॉलेज होगा ही कि there are total living organisms are divided into 5 kingdoms, right? वो kingdoms के नाम मोनेरा है. मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया. फिर प्रोटिस्टा है, प्लांटे, वेरी गुड, एनिमेलिया, फंगाई. So all these are the kingdoms: kingdom Monera, Protista, fungi, plantae and the animalia. अभी kingdom Monera में कौन कौन आता है? Who comes in kingdom Monera? That is all the bacteria. Viruses को कोई भी kingdom में जगह नहीं दी है. Remember, virus
is like a non-living thing when outside, so it is not given place in any kingdom. So kingdom Monera में कौन आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे. किंगडम प्रोटिस्टा मध्ये कोण येणार? अमीबा, पॅरामोइझियम, युग्लेना, आठवलं? ओके, हे सगळं येणार कशात? प्रोटिस्टा. फंगाई मध्ये कोण येणार? फंगसेस लाइक यीस्ट है, मशरूम्स है, ये सब आएंगे. प्लांटी मध्ये कोण येणार? प्लांट्स. और एनिमेलिया में एनिमल्स. नाउ लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट किंगडम इज ऑब्वियसली द एनिमेलिया. एनिमल्स के जितने स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज है एनिमल्स के. प्लांट्स की भी है, लेकिन प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है बिकॉज वी आर कटिंग डाउन ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. एनिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्लांट्स डिक्रीज हो रहे हैं. एनिमल्स मतलब ह्यूमंस इंक्रीज हो रहे हैं बेसिकली. सो किंगडम एनिमेलिया इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स. आई विल ऑल्सो शेयर माई पर्सनल नोट्स, राइट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से करेंगे बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी को रिफर करेंगे, और high level synopsis or MCQs. I will share a lot of MCQs with you for the NEET, right? And also I will share my own personal notes also, which are very famous amongst the students. Now what to continue is कि एनिमेलिया है, एनिमल्स है, करोड़ों स्पीसीज है, एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, right? So what we need to do is, there is a very important need for Classification. There is a very important need for classification. Yes, right. Classification means what? It is like, it is dividing the animals on the basis of their similarities and dissimilarities. जे जे सिमिलर है त्यांना एका ग्रुप मध्ये ठेवायचं, जो सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रखना है, जो डिसिमिलर है उनको अलग ग्रुप में रखना है. That is called classification. इससे क्या होता है? Study becomes more easy, it becomes more logical, right? So this is why we are dividing them into different groups. Now animals में जो groups है, आपको 10th standard में तो था ही, phylums याद है आपको? You had some phylums. So how many total animal phylums are there? Kingdom Animalia में जो animals के अलग अलग phylum है, तो total कितने phylum है? There are total 30 phyla. Total number of phylums are 30. 30 animal phylums are there. तो हमें क्या सब 30 के 30 पढ़ने? No, we don't have to study all of them. कितने पढ़ने हमें? हम देखते हैं अभी. That is what we have to do is, हमें कितने पढ़ने? हमें 10. there are 10 major phylums. मेजर फाइलम कितने होते हैं? 10. सो 10 मेजर फाइलम है, तो हमें ये 10 मेजर फाइलम के ऊपर फोकस करना है. ओके, वी हैव टू फोकस ऑन दीस 10 मेजर फाइलम्स. मेजर फाइलम है और माइनर फाइलम है, बट फॉर आवर पोर्शन we have to only focus on the major phylum. Minor phylum are 20. कितनी minor phylum है? 20 minor phylum है. बट हमें अभी वो पोर्शन में नहीं है, ठीक है? minor phylum 20 है, but this is not going to be important for us right now. It will be the 10 major phylum. अच्छा, एक minor phylum दिया है, one minor phylum is given. फॉर द इंट्रोडक्शन पोर्शन में एक माइनर फाइलम इंक्लूड किया है जो आपको 10 पे नहीं था. चलो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये चैप्टर को कैसे पढ़ने का, करना क्या है. बोलोगे सर हमको याद है आपको 10th स्टैंडर्ड मध्ये बघूया कोणाला कोणाला आठवत आहे? जिसको भी याद है ना, वो मुझे आप लोग अनम्यूट करके चैट में भेज सकते हो. सो सर आपको अभी पोस्ट विसेरल के बारे में बता रहे थे, पोस्टमार्टम्स के बारे में बता रहे थे. सो व्हाइल वी आर डूइंग मेडिकल, वी हैव असिस्टेड मेनी पोस्टमार्टम्स. मैं आपको बहुत सारे फोटोज, रियल फोटोज, बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ. सी इन माय टीचिंग आई विल शो यू लॉट ऑफ थिंग्स. ऑब्वियसली सारे ऑर्गन्स वगैरह हमने भाजी चिरते ना, वैसा चिरा है. बहुत सालों हो गए, कितने सारे पार्ट्स.
Now I will show you some medical related things. और online lecture में तो और भी advantage है that we can show you a lot of things. So online advanced lectures are in fact more, sometimes more advantageous for certain chapters. अभी 10th स्टँडर्ड मध्ये 10वी मध्ये तुम्हाला आठवत असेल सगळ्यांना की तुम्हाला ते किंगडमचं एक टेबल होतं काहीतरी पेज नंबर आणि मला एक्झॅक्ट आठवत नाही 65 काहीतरी 65 वर 10वीच्या सायन्स 2 मध्ये तिथे पेज नंबर काहीतरी 65 वर एक येलो टेबल होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी चालू केलेलं किंगडम ये पहला फाइलम जो उन्होंने दिया था तो फर्स्ट फाइलम उन्होंने कौन सा दिया था पता है फर्स्ट फाइलम उन्होंने दिया था प्रोटोजोआ तुम्ही स्वतः बघू शकता 10वीचं टेक्स्टबुक असेल तर बरोबर आहे ना राईट सो त्यांनी स्टार्ट केलेलं प्रोटोजोआ पासून आणि मग प्रोटोजोआ नंतर पॉरिफेरा आणि असं सगळं दिलेलं सो दिस वॉज टोटली रॉन्ग सो डोंट स्टार्ट फ्रॉम प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ ये क्या है प्रोटोजोआ में कौन आता है अमीबा पैरामोइजियम यूग्लेना अमीबा पैरामोइजियम प्लाज्मोडियम ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं प्रोटोजोआ ये किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है आर यू अंडरस्टँडिंग मी 10वी जेव्हा शिकवली तेव्हा सगळ्यांना सांगितलं हे सगळं टेक्स्टबुक मध्ये रॉंग है कैंसिल करा राइट किंगडम जो फर्स्ट फाइलम किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है पॉरिफेरा तो आपको ही मुझे याद आहे 10वीला तुमच्या सायन्स बुक मध्ये टेबल मध्ये दिलेलं नाव पहिलं नाव प्रोटोजोआ आणि मग सेकंड पॉरिफेरा पण प्रोटोजोआ रॉंग आहे मला सांगा अमीबा आणि पॅरामोइजियम आर दे एनिमल्स आर दे एनिमल दे आर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ कैन दे बी एनिमल अपनी 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 लेवल ही घटा दी एनिमल्स आर एडवांस्ड एनिमल्स और हमको कीटाणु बना दिया अमीबा पैरामोइजियम एनिमल बना दिया क्या क्या बोलेंगे अभी लेकिन आपको ही आपके टेक्स्ट बुक में तुमच्याच बुक मध्ये तुम्हाला आठवत असेल पेज नंबर 67 वर सायन्स 2 च्या जेव्हा फाइलम्स एक्सप्लेनेशन चालू केलेलं तेव्हा स्टार्ट किया था पॉरिफेरा से याद है तो स्टार्ट प्रोटोजोआ से कभी नहीं किया था टेबल में दिया था कि प्रोटोजोआ पहला फाइलम है लेकिन वो पूरा रॉन्ग था स्टार्ट उन्होंने भी किया पॉरिफेरा से सो ये मैंने आपको एक चीज बताई क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए राइट 11th स्टैंडर्ड अभी अपना जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है आई होप सब स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ये सब बुक्स बाय किए नहीं किए तो कर लो सब अभी ओपन हो गया एवरीथिंग अवेलेबल है ताकि जो जो लेक्चर अपना हो रहा है वैसे वैसे आप उसको पढ़ सकते हो यू कैन बी विद द सेम स्पीड नाउ व्हाट एल्स वी हैव टू गो फर्दर इज हमें जिन चीजों पे आगे जाना है दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनिमल फाइलम्स ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर जो है ना ये कौन से वर्ड के ऊपर डिवाइडेड है दिस देयर इज अ वन वर्ड एक वर्ड के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है दैट वर्ड इज द यस नोटोकॉर्ड एंटायर चैप्टर है ना पूर्ण या वर्ड वर है क्योंकि ये वर्ड के ऊपर ही सब फाइलम्स को डिवाइड किया है राइट नाउ मेन चीज क्या है की व्हॉट इज अ नोटोकॉर्ड 10वी मध्ये बऱ्याच मुलांना काय एनीवन यू ऑल वांट टू ट्राय कोणाला ट्राय करायचं आहे नोटोकॉर्ड काय जिसमें बैकबोन होता है या वो एक मसल रहता है ना वर्टिब्रल कॉलम हाँ वर्टिब्रल को so basically notochord is the vertebral column right बरोबर आहे Yes, sir. ओके सो आपल्याकडे नोटोकॉर्ड आहे की नाही आहे ह्युमन बीइंग्स डू वी हैव नोटोकॉर्ड राइट नाउ Yes, sir. We Yes, have sir. notocard. वेरी गुड सो ऑल ऑफ अस ह्यूमंस वी विल हैव नोटोकॉर्ड राइट नाउ बरोबर की नहीं Yes, sir. ओके सी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ने गलती किया है मैं अभी आपको बताता हूँ लेट मी टीच यू अब मैं आप मेरे नोट्स शेयर कर रहा हूँ जस्ट होल्ड ऑन
So see students, what is a notochord? Notochord exactly क्या है? कि notochord is a long rod-like support structure present along the back of the individual. Okay, so what is a notochord? It is a long rod-like support structure, right? ये rod जैसा एक support structure है जो अपने dorsal side में होता है. कौन से side में होता है? Dorsal side. Remember, it is present on what side? Dorsal side. और ये नोटोकॉर्ड कब होता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ. सो डिटेल मध्ये लक्ष द्या. नोटोकॉर्ड काय हे सगळ्यांना माहिती आहे की नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अलोंग द बैक ऑफ द इंडिविजुअल डॉर्सल साइड, राइट. एक रॉड जैसा चीज है. और ये कब होता है? ये जन्म के बाद नहीं होता. इसलिए मी तुम्हाला विचारला आता कि काय आपल्याकडे सगळ्यां क्या अपने पास नोटोकॉर्ड है क्या, तो आप लोगों ने हाँ बोला. अपने पास नोटोकॉर्ड नहीं है आज. डू वी हैव नोटोकॉर्ड टुडे? नो. नोटोकॉर्ड अपने पास्ट में था, जब हम मदर के अंदर थे, जब हम लोग मम्मी के अंदर डेवलप हो रहे थे, तभी अपने बैक रीजन में नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा चीज आया था, राइट. और वो जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड जो है वो बाद में डेवलप होके क्या बन गया? ये नोटोकॉर्ड बाद में डेवलप होके बन गया vertebral column, that is manka, right, and the skeleton also. So it formed the vertebral column. Backbone बोलते हो, है ना, right? Can you tell me one more name for vertebral column? Vertebral column ला अजून एक नाव दे इंग्लिश मध्ये. जोर से बोलो. Spinal cord. Yes, spinal cord. Very good. ये देखो, ये भी मी मुद्दाम विचारला प्रश्न. देखो, I have taught thousands of students. See, I know, don't worry, I know every student क्या कौन कब मिस्टेक करेगा. तो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना स्टूडेंट, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है. वर्टिब्रल कॉलम है ना, त्याच्या सेंटर मधनं स्पाइनल कॉर्ड जातो. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड बाद में स्पाइनल कॉर्ड बनाता है. मैचिंग है ना, नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन आंसर रॉन्ग. सो नोटोकॉर्ड क्या बनाता है? वर्टिब्रल कॉलम, स्केलेटन. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स, व्हाइट नर्व्स, सॉफ्ट धागे आहेत ते. आपला मणका आहे ना, मणका, बॅकबोन, रीड का डी, त्याच्या सेंटर मधनं स्पाइनल कॉर्ड जातो. सो नोटोकॉर्डचं काम काय? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. समजलं तुम्हाला? आता कळतंय की नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड नाही बनत. नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बनवतो, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में से जाता है, सेंटर में से पास होता है. तो ये सब आप, ये सारी चीजें आप लोग याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट एल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ये जो नोटोकॉर्ड है, अभी जो एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होगा उनको क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स. और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स. इज दिस क्लियर? नोटोकॉर्ड आहे तर कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट. जैसे तुम्ही वेज खाता तो वेजिटेरियन, नहीं तो नॉन वेजिटेरियन, वैसे कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट. सो आपको शायद 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा क्या सीखने मिला कि नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, जन्म के बाद नहीं होता. उसके बाद स्केलेटन बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है. और आपको वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड को में भी फर्क समझा. हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन बुला सकते हैं. What we can call vertebral column, मणक्याला काय बोलू शकतो आपण? स्पाइन, राइट, बट नॉट स्पाइनल कॉर्ड. इट कैन बी कॉल्ड एज स्पाइन. स्पाइनल कॉलम भी बोल सकते हैं क्या? स्पाइनल कॉलम ठीक है, बोल सकते एक तरह से, ठीक है, बट मेनली वी विल यूज द वर्ड vertebral column, but spinal column also we can see. Yes, good, very good. Then let us continue further. तो अब हमें ये बात करनी है. देखो, आप लोग ने एनिमल टिश्यूज सर ने स्टार्ट किया है, तो आपको सगळ्यांना एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म हे सगळं माहिती आहे? यस सर. राइट. ये जर्म लेयर्स पता है ना, 10वीला पण होता तुम्हाला. तो ये जो नोटोकॉर्ड है ना, ये नोटोकॉर्ड कौन से जर्म लेयर से डेवलप होता है? नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म. नोटोकॉर्ड कौन से जर्म लेयर से डेवलप होता है, इवॉल्व होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम दी मेसोडर्म. समझ लो,
मिडिल लेयर मिजोरम से आता है, तो याद रखना। तो वी हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन, चैप्टर से इंट्रोडक्शन की किंगडम्स 5 आहेत. फिफ्थ किंगडम और मेन बडा किंगडम एनिमेलिया आहे. एनिमेलिया मध्ये फायलम्स किती आहेत, मेजर किती आहेत, मायनर किती आहेत, 10 मेजर 20 माइनर. माइनर आपल्याला यावर्षी एक आहे, एक नया बताता हूं मैं आपको. फिर मैंने पूरा चैप्टर का क्या किया, ये चैप्टर एक वर्ड के ऊपर है, नोटोकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ नोटोकॉर्ड, वो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया. और अभी कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो बेसिकली अभी मैं आपको वो फाइलम्स का मैं फोटो दिखाता हूँ कि फाइलमची नावं अशी काय आहेत. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर देखो, आप लोग में से भी बहुत लोग को मेडिकल में जाना होगा, 100% डॉक्टर ही बनने का सपना है आपका. लेकिन आप लोग मतलब सबको एक ही रहते हैं कि बायोलॉजी मध्ये वर्ड मोठे मोठे आहेत, बड़े बड़े वर्ड्स आहेत. तो ये भारी भारी वर्ड्स कैसे आए? एक्चुअली इसमें से आधे से ज्यादा वर्ड्स तो इंग्लिश के है ही नहीं, ये सब ग्रीक, लैटिन, रोमन वर्ड्स है. जैसे एनिमल की फाइलम है, एनिमल का फाइलम का जो लिस्ट है ना, ये पूरा जो लिस्ट है, ये सब नाम जो है ये ग्रीक नाम है. ये पॉरीफेरा है ना, आर्थ्रोपोडा, ये इंग्लिश नाम नहीं है, ये इंग्लिश नाम नहीं है. मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. हम लोग ने उसको इंग्लिश में डिवाइड किया है, ब्रेकअप किया वर्ड्स को अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो सब जन यहां देखो, लेट अस सी. मी तुम्हाला आता काय शिकवतोय, फाइलमचं मीनिंग शिकवतोय सगळं. फाइलमची नावं काय? पहिला फाइलम कोणचा आहे? पॉरीफेरा. सो पोर्स मतलब होल्स, समजलं तुम्हाला? पॉरीफेरा, हे पॉरीफेरा नाव आहे ना, हे पॉरीफेरा नाव ग्रीक नाव आहे, ये इंग्लिश नहीं है. असं पॉरीफेरा कधी का इंग्लिश स्पेलिंग ऐकलंय? पॉरीफेरा, ये ऐसा इंग्लिश नहीं है, ये ग्रीक है, लिखा है इंग्लिश में. आप बोलोगे सर ग्रीक, ग्रीक इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ग्रीक तो ग्रीक में लिख सकते, रोमन रोमन में लिख सकते, लैटिन लैटिन में लिख सकते. अरे इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, हम भी लिखते हैं ना. व्हॉट्सअप वर तुम्ही टायपिंग करता ना, काय करता? मराठीमध्येच टाईप करता की नाही? खरं सांगा, काय आहे, कुठे आहे, बोलवता की नाही? तुम्ही टायपिंग इंग्लिश मध्ये करता ना, कुठे पोहोचला, काय करतोय, किधर है, क्या छे, कब आने वाला है, करते हो कि नहीं? सच बताओ. हम लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं, लेकिन वो बोल मराठी, हिंदी, गुजराती या दूसरी भाषा वैसा रहता है. तो वैसे ही ये पॉरीफेरा है, समझा आपको? तो ये जो इसका मीनिंग है ना, ये वर्ड को क्या करना है, अपने को ब्रेकअप करना है. शब्द को तोडो और मीनिंग वेगवेगळं बघा, मग इझी जातं. जसं पॉरीफेरा, तो पोर्स मतलब होल्स, आणि फेरा मीन्स टू हैव. सो जो एनिमल्स के अंदर होल्स है, दे विल बी कॉल्ड पॉरीफेरा. समझलं सगळ्यांना? पॉरीफेरा, टू हैव होल्स इन द बॉडी, राइट. एंड ऑब्वियसली एग्जाम्पल एक ही है, दैट इज द स्पंजेस. ऑल दुनिया के सारे स्पंजेस ये फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा में. अभी समझा पॉरीफेरा का मीनिंग क्या है? ब्रेकअप वर्ड, पोर एंड फेरा, टू हैव होल्स. नेक्स्ट इज सिलिंट्रेटा. आता प्रोनाउन्सिएशन शाळेमध्ये भन्नाट प्रोनाउन्सिएशन केलेले. सिलिंट्रेटाला ऍक्च्युअली कोइलेंटेराटा, कोलंट्राटा, काय नाही माहित नाही, गॉड नोस काय काय बोलायचं. सिलिंट्रेटा वो साइलेंट है, उसमें कोलॉस मतलब कॅव्हिटी आणि एंट्रॉन म्हणजे इंटेस्टाइन, राइट. त्यांच्या त्यांच्याकडे एक इंटेस्टाइन क्या अशी कॅव्हिटी असते, राइट. स्टमक आणि इंटेस्टाइन मध्ये कॅव्हिटी असते, त्याच्यामध्ये कॅव्हिटी आहे, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? सिलिंट्रेटा. आणि एग्जाम्पल कौन है? जेलीफिश. यू ऑल नो जेलीफिश, हाइड्रा, 10th में ये दोनों था सब. तो ये आता है सिलिंट्रेटा में. कोण सांगणार मला? सिलिंट्रेटाचं अजून एक नाव होतं. सिलिंट्रेटा फाइलम का और एक नाम था. व्हाट वाज अनदर नेम? वेरी गुड, वेरी गुड. सी साइलेंट था, वेरी गुड. निडेरिया, निडर, निडेरिया. सी साइलेंट है, निडेरिया. इसको निडेरिया आप बोलोगे सर, जैसे आपने उसका बताया, निडेरिया क्यों बोलते? निडेरिया वर्ड कहां से आया? उसका वर्ड आया फ्रॉम द वर्ड, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं. देखो स्टुडंट्स, ये चॅप्टर मध्ये मी तुम्हाला खूप फोटो दाखवणार आहे, काय काय प्रत्येक फाइलमचे वेगवेगळे फोटोज. सम स्नॅप्स आय ओनली बिकॉज आय एम अ वाइल्ड लाइफ लवर.
मैंने बहुत सारे रेयर एनिमल्स के फोटो शूट किए, तो मैं आपको मेरे रियल फोटो भी दिखाऊंगा, दूसरे फोटो भी बताऊंगा. सो दिस इट्स ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड. सो निडेरिया का जो ब्रेकअप वर्ड है ये है नीडोसाइट्स. निडेरिया किससे आया है? नीडोसाइट्स. नीडोसाइट्स म्हणजे स्टिंगिंग सेल्स. हे बघा, जेलीफिश आहे ना, जेलीफिश मध्ये असतात ना धागे धागे, राइट? ये नीडोसाइट्स है, टेंटेकल्स है, उसके अंदर नीडोसाइट्स है, पॉइजन सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स. म्हणून नीडोसाइट्स वरनं नाम पडलं निडेरिया. कळलं? निडेरिया नाम कसं पडलं? बिकॉज जो टेंटेकल्स है ना धागे धागे, उसके अंदर नीडोसाइट्स है, म्हणून नाव काय पडलं? निडेरिया. फिर उसके बाद let's go to the next phylum. Now, what will be the next phylum? That is to understand about the. ये देखो, ये जो फाइलम है ये नया फाइलम है. ये फाइलम अपने को कभी नहीं था. We did not have this in our group. तो ये जो है ना, ये त्याचं नाव काय? टेनोफोरा. या फाइलमचं नाव काय? टेनोफोरा. हे होतं तुम्हाला 10वी ला? No, नव्हतं ना? It wasn't there, right? no, This, sir. yeah, I know this was not there. This wasn't there. So it is called as what? It is called as the Ctenophora. C is again silent here. Ctenophora, they are called comb jellies. I will share all the photographs with you, don't worry. They are the animals with, जिनके अंदर लाइट लगता है. ये पता है, वो पिक्चर देखा है, बॉलीवुड के गाने वगैरह देखे, उसमें पता है वो समंदर पे ऐसे पानी के नीचे जुगनू टाइप लाइट लगते हैं. ऐसे एनिमल्स है जिनके ऊपर ब्लूइश ऐसे अलग कलरफुल पानी बन जाता है. दैट इज दैट दे आर ऑल एनिमल्स ऑफ टेनोफोरा, राइट? आपने एक बहुत अच्छी मूवी देखी होगी, फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डॉरी, देखा है? त्या पिक्चर मध्ये पण हे सगळे ऐसे ऑल दीज एक्वेटिक एनिमल्स वर शोन. ओके, सो टेनोफोराच्या नंतर काय येतं? आफ्टर टेनोफोरा वी हॅव टू गो टू प्लॅटी हेल्मिंथिस. सो प्लॅटी म्हणजे काय? प्लॅटी म्हणजे फ्लॅट, सपाट, प्लॅटी. और हेल्मिंथिस का मतलब क्या है? वर्म्स. सो प्लॅटी हेल्मिंथिस म्हणजे काय? फ्लॅट वर्म्स, जिसका बॉडी एकदम फ्लॅट है, एकदम रिबन की तरह है. सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज द प्लॅटी हेल्मिंथिस. दोज हुज बॉडी इज फ्लॅट लाईक अ रिबन. याच्यामध्ये कोण कोण येणार? प्लेनेरिया. आठवलं 10वी मध्ये होतं तुम्हाला ते रिजन? येस, व्हेरी गुड. टेपवर्म, व्हेरी गुड. लिव्हर फ्लूक, टेपवर्म, प्लेनेरिया. 10वी मध्ये होतं ना ते रिजनरेशनचा आन्सर प्लेनेरियाचं. Yes, sir. Okay, then next one is the nemathelminthes. Nemathelminthes, see, helminthis म्हणजे worms. सर हे पण helminthis मध्ये याच्यात पण worms येणार. आणि निमॅट म्हणजे थ्रेड लाईक वर्म्स. याच्यात कुठची वर्म येणार? ज्यांची बॉडी नूडल्स असतात ना तसे असतात, थ्रेड लाईक राउंड वर्म्स. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेमैटहेल्मिंथिस. इसमें एग्जांपल है एस्कैरिस. आई होप यू नो एस्कैरिस कौन है? पेट मध्ये जंतु होतात ना, कृमी, पेट में जो कीड़े होते हैं वो एस्कैरिस को बिलोंग करते हैं ना. सो दे आर द एस्कैरिस. सो नेमैटहेल्मिंथिस का और एक नाम भी है. नेमैटहेल्मिंथिस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड. इट कैन बी कॉल्ड एस्केल्मिंथिस. राइट, क्योंकि इसके अंदर एस्कैरिस आता है, तो आपण याला काय म्हणू शकतो? एस्केल्मिंथिस. या निमाटोडा भी बोल सकते हैं इसको. इसको और एक नाम भी है निमाटोडा. निमैटहेल्मिंथिस बोल सकते हैं, एस्केल्मिंथिस बोल सकते हैं, निमाटोडा भी बोल सकते हैं. Then after that, students, we have the arthropoda, the largest of all the phylums. I'm sure everyone knows. Yes, Everyone knows, right? Yes, कि sir. आर्थ्रोपोडा Yes, sir. सबसे बड़ा ग्रुप है. इसमें आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड.
The word arthros stands for jointed and the word poda stands for feet. So they are the animals having the jointed appendages. जिनके पैर jointed है, इसमें सब कुछ आएंगे, इसमें अच्छे बुरे सब आएंगे, जो आपको पसंद है ना पसंद है सब आएंगे. बटरफ्लाई ब्यूटीफुल है, पसंद होगे. हाँ, मस्त प्रॉन्स क्रैब्स पसंद है कि नहीं, ये भी आर्थ्रोपोडा में. और मच्छर मक्खी जो नहीं, कॉकरोच जो नहीं पसंद वो भी है. सगळे येतात ना याच्यामध्ये. ओके, टेस्टी वाले, बीमार करने वाले सब आते हैं इसमें. So that is arthropoda. Then next is the annelida. Annelida means what? कि जिसके बॉडी में रिंग्स है, राइट? देखो ग्रीक में एन्युलस, एन्युलस मतलब रिंग. सो रिंग वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एनालिडा. इसमें एग्जांपल कौन आएगा बताओ? फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, earthworm, यस, लीच आएगा, अर्थवर्म आएगा, वेरी गुड, नेरिस आएगा, बहुत सारे एनिमल्स आएंगे इसमें. Then we have the phylum Mollusca. Students, Mollusca is the second largest phylum. Mollusk म्हणजे काय? ज्यांची बॉडी सॉफ्ट है. गोगलगाय, स्नेल, ऑक्टोपस, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑक्टोपस, स्नेल, शेलफिश, शिंपल्या खाता ना तुम्ही, ते वो सब आएंगे इसमें मॉलस्का में, राइट? और आपको बताओ एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, बरोबर? आर्थ्रोपोडा के अकेले आर्थ्रोपोडा में कितने स्पीसीज है? यू नो अलोन आर्थ्रोपोडा इज हाउ मेनी स्पीसीज? सोचो, सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में 9 लाख स्पीसीज है, अप्रोक्सीमेटली 9 लाख. 9 लाख आर्थ्रोपोड नहीं है, 9 लाख प्रजाती आहेत आर्थ्रोपोडाच्या, 9 लाख जाती आहेत. म्हणजे मच्छर ही एक जात झाली, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ऐसे 9 लाख अलग अलग स्पीसीज है. इमेजिन. तो कहां से कहा? और नंबर 2 पे कौन आता है? मोलस्का ना. आर्थ्रोपोडा में 9 लाख, और जो नंबर 2 पे आता है ना मोलस्का, जो नंबर 2 पे मोलस्का आता है, उसके पास कितने होंगे? आप बोलोगे सर 8.5 लाख. आसपास नहीं, किधर है देखो, सीधा 6 lakhs. 60,000. दैट्स इट. कितना फर्क है देखो, कहाँ 9 लाख और कहाँ 60,000. नंबर 1 9 लाख, नंबर 2 डायरेक्ट 60,000, राइट? और बाकी सब उससे भी कम कम कम. Then next one is the echinodermata. So students, what's the meaning of the word echino? Echino का मतलब है स्पाइनी. यू नो, स्किन के ऊपर ऐसे स्किन वरती छोटे छोटे स्पाइन्स असतात, तसे काटे टाइप. तो इसमें कौन आता है पता है? वैसे गोल गोल एनिमल्स है, सी अर्चिन, राइट? Sea cucumber. वेरी गुड. सी अर्चिन है, सी कुकुम्बर है, आणि कोण है? स्टारफिश है, फेदर स्टार है. अभी देखो स्टूडेंट्स, ये चॅप्टर मध्ये ना 10वीला हे सगळं नव्हतं, पण आता काय एमसीक्यू में ना सायंटिफिक नाम पूछेंगे. म्हणजे मी तुम्हाला ट्रेन करीन, डोंट वरी, आई विल ट्रेन यू फॉर दो स्लोली स्टडीली. अभी हम लोग 2 साल वी आर टुगेदर फॉर द स्टडीज पार्ट नाउ. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट दी की सायंटिफिक नेम्सच्या दृष्टीने तुम्ही आता अभ्यास करा. डोंट स्टडी लाइक ओनली स्टारफिश वगैरह. 10th में वो बराबर था, राइट था, बट अभी आपको ऐसा उल्टा पूछेंगे. जैसे स्टारफिश नाम कभी पूछेंगे नहीं. स्टारफिश का सायंटिफिक नाम क्या है? एस्टेरिया रुबेन्स. तो आपको एस्टेरिया विचारणार. सगळ्यांना तुम्हाला जेलीफिश माहिती आहे, राइट? पण जेलीफिश नाही विचारणार, मतलब जेलीफिशचं सायंटिफिक नेम विचारणार तसं. So you have to do the scientific names. So we will practice, you know, all of them. Don't worry. Jellyfish को क्या बोलते हैं? Aurelia. Okay, so हम लोग आपको बताएंगे. हाँ. Then hemichordata. अच्छा, ये इसके ऊपर डिबेट है. कनेक्टिंग लिंक मध्ये तुम्हाला 10वीला कनेक्टिंग लिंक होता आन्सर, आठवत आहे? Yes, sir. Right? So hemichordata. Okay, very good guys. Hemichordata is a connecting link between chordates and non-chordates. Chordates और non-chordate के बीच का अगर कोई connecting link है तो वो कौन है? Hemichordata है. Okay, half chordata. और उसके अंदर भी Melanoglossus, मतलब ये सब worms है, कीड़े टाइप है, पानी में रहते हैं. तो आप मुझे बताओ, अभी ये hemichordata connecting link है, बराबर? उसके बाद तो सब chordates आते हैं. Chordates मतलब सर्वात एडवांस्ड एनिमल, ज्याच्यामध्ये मासे, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, सब हम लोग इसमें आते हैं, राइट?
लेकिन इतने सब आने के बाद भी हमारा फाइलम देखो छोटा है, आर्थ्रोपोडा फिर भी कितना बड़ा है. नाउ हेमिकॉर्डेटा कशामध्ये येणार, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन मैं अभी आपका ऐसे थोड़ा जीके टेस्ट कर रहा हूं. हेमिकॉर्डेटा जो है कनेक्टिंग लिंक है म्हणतात त्याला, उसमें नोटोकॉर्ड वॉज देयर और नॉट देयर, नोटोकॉर्ड वॉज प्रेजेंट और एब्सेंट, कि हाफ नोटोकॉर्ड था. हाफ था. सो नोटोकॉर्ड सी, इसमें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, नोटोकॉर्ड वॉज कंप्लीटली एब्सेंट. ये बहुत लोगों को पता नहीं है. डोंट वरी, आई विल टीच यू. जब फाइलम करूंगा तो धीरे धीरे सिखाऊंगा. हुआ क्या था कि इसमें ना नोटोकॉर्ड कभी था ही नहीं. तो आप बोलोगे सर फिर नाम हेमिकॉर्डेटा क्यों रखा है? इफ नोटोकॉर्ड वाज नॉट देयर, व्हाई द नेम इज हेमिकॉर्डेटा? इट इज केप्ट बिकॉज पुराने साइंटिस्ट को लगा, उनको लगा कि उन्होंने जो स्टडी किया ना, उनको लगा कि उसकी बॉडी में जो उनकी बॉडी के अंदर है ना आधा अधूरा ऐसा रॉड जैसा चीज दिखा ना, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, यहाँ ये आधा आधा नोटोकॉर्ड है, तो नाम पड़ा हेमिकॉर्डेटा. राइट, उन्होंने जो देखा वैसा उन्होंने इसलिए नाम दे दिया हेमिकॉर्डेटा. लेकिन जो बाद के जो लेटेस्ट जो साइंटिस्ट है, जो आगे के साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, जो आपको लग रहा था राइट वो नोटोकॉर्ड है, वो एक्चुअल रियालिटी में नोटोकॉर्ड नाही है, ते नोटोकॉर्ड नाही आहे. जुन्या सायंटिस्टला वाटलं की ते नोटोकॉर्ड आहे, थोडं अर्धवट नोटोकॉर्ड आहे, म्हणून नाव देऊन टाकलं, नाम दे दिया हेमिकॉर्डेटा. लेकिन अभी आज एज ऑन डेट टुडे इट इज प्रूव्ड दैट वो नोटोकॉर्ड नहीं था, नोटोकॉर्ड जैसा कुछ था, नोटोकॉर्ड जैसा सिमिलर बट नॉट नोटोकॉर्ड. समजलं मी काय म्हणते तुम्हाला? हे सगळं डिटेल्स भरपूर आहे त्या चॅप्टर मध्ये. सो ये हेमिकॉर्डेटा, अगर आपको एमसीक्यू आता है कि हेमिकॉर्डेटा कौन है, क्या वो कॉर्डेट है कि वो नॉन कॉर्डेट है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे बोलो, इज इट कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट? नॉन कॉर्डेट. वेरी गुड, वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स यहां तक ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स. यहां तक मतलब क्या, कॉर्डेटा छोड़ के. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पूछता हूं कि कौन से एनिमल ज्यादा है, कॉर्डेट जास्ती है जगात की नॉन कॉर्डेट जास्ती है? तो सगळे म्हणतात सर कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स. आंसर ये नॉन कॉर्डेट्स है. नॉन कॉर्डेट्स जास्तीच असणार ना. क्यों क्यों बताओ, एक रीजन बताओ नॉन कॉर्डेट. अरे क्योंकि अकेला आर्थ्रोपोडा सब पे, अकेला आर्थ्रोपोडा भारी है. आप बाकी सबका टोटल ले लो तो भी आर्थ्रोपोडा ज्यादा भारी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट. सो नॉन कॉर्डेट्स आर मोर देन कॉर्डेट्स ऑलवेज. ओके. नॉन कॉर्डेट्स म्हणजे काय, ज्यांच्याकडे नोटोकॉर्ड नव्हता, म्हणजे हाडं पण नाही आहेत, नोटोकॉर्ड से आता है ना स्केलेटन. तो बघा ना, ये जेवढी पण तुम्हाला मी फाइलम सांगितले, ये जो भी फाइलम मैंने बताए, देखो पॉरीफेरा में कौन था, स्पंजेस, राइट, जेलीफिश, हाइड्रा, राइट, ये पानी में लाइट वाले एनिमल्स, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, एस्कैरिस, कॉकरोच, बटरफ्लाई, प्रॉन्स, अर्थवर्म, लीच, राइट. इसमें कौन आता है, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, राइट, ये बैलेनोग्लॉसेस. ये सब किसी में भी हाड़ है का? ये जो भी एनिमल मैंने डिस्कस किए, किसी में भी हड्डियां है क्या? नहीं है ना, किसी में भी हड्डियां नहीं है, क्योंकि वो नॉन कॉर्डेट्स है. राइट. सो रिमेंबर, फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा भी, हेमिकॉर्डेटा पण, ये सब के सब कौन है, नॉन कॉर्डेट्स है. ऑल ऑफ देम दे आर द नॉन कॉर्डेट्स. रिमेंबर दैट. एंड ओनली द लास्ट फाइलम विच इज देयर, दैट इज द कॉर्डेटा. इट इज द ओनली कॉर्डेट वन. तो ये आपको याद रखना है. अब हमें ये जो चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उसके पहले अभी ऑब्वियसली वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम्स एंड ऑल द नेम्स एंड ऑल दिस डिटेल्स. लेकिन अभी कॉमन क्राइटेरिया करेंगे. मैं ये जो चैप्टर सिखाऊंगा ना, मैं अलग स्टाइल में सिखाऊंगा. मैं फाइलम स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट दूंगा. क्या क्या बोलते हो, पूरे चॅप्टर के लिए मैं आपको एक ही आन्सर बनाता. चलो इझी करते. पूर्ण चॅप्टर साठी आपण सेम पॉइंट्स देऊया, तेच पॉइंट तुम्ही सगळ्यांना अप्लाई करा, बस इजी होऊन जाणार. सो जैसे मैंने आज मेरी नोट शेयर की है, ऐसे मैं और भी मेरे बहुत सारे नोट्स शेयर करूंगा, फाइलम के भी और इसके, और हम लोग ऐसा एक कॉमन आंसर करेंगे. राइट. वी विल डू कॉमन पॉइंट्स, कॉमन क्राइटेरिया. मी 15-16 तुम्हाला पॉइंट्स देणार, और एक बार वो 15-16 पॉइंट्स आपको आ गए, फिर आपको ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर आ गया. फिर क्या करना है, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, हर एक फाइलम में खाली मैच करते जाना है. राइट. फिर देखो कितना इजी जाता है. अलग अलग फाइलम्स को रट्टा मारते बैठोगे, बहुत बड़ा बड़ा है. तो उससे अच्छा क्या करो, सब फाइलम्स में कॉमन पॉइंट्स को स्टडी करो और उनको अप्लाई करते जाओ.
आई विल टीच यू दैट टेक्निक, राइट? मैं टेक्निक तुम्हाला सांगेन नेक्स्ट लेक्चरला कि वो उसको कैसे हमें ढालना है और कैसे सीखना है. ओके, सो आई कैन सी दैट नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉमन क्राइटेरिया. स्टुडंट्स, कॉमन क्राइटेरिया आपल्याला चालू करायचं आहे. बट द as you all know, the time is already up and you have also another lecture after this, right? So कोणाला काही विचारायचं मला